ان کے مطابق لیگل ووٹس ہیں. چاہ آپ مور تیر پہ لگا دے یا نام پہ لگا دے, باکس میں لگا دے, جب ووٹر کا پھر گیلانی صاحب الیکشن جیت چکا ہے اور چیئرمین سینٹ آف پاکستان بن چکا ہے. اب اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں. میں نے خود مریم شریف صاحبہ سے بات کیا, اپنا لائر سے بھی بات چل رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور صدر زرداری صاحب کا بات ہوا ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی, غیر آئینی, اللیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم عدالت میں چیلنج کریں گے اور اس ناانصافی کو انشاءاللہ تعالی درست کریں گے. اس لیے ہمارا موقف ہے کہ ہم جیت چکے ہیں. The chairman's Senate election has been stolen. It has been stolen in front of the people of Pakistan. لیکن یہ ہتھ کنڈے کے باوجود جو آپ نے ثابت کر دیا ہے, آپ نے ثابت یہ کر دیا ہے, بائی الیکشنز میں آپ نے ثابت کر دیا کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے انتخابات میں آپ نے ثابت کر دیا کہ نیشنل اسمبلی عمران خان کے ساتھ نہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. اور آج آپ نے سینٹ میں بھی یہ چیلنج کر دیا ہے, یہ ثابت کر دیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان تو سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا, مگر حکومت کا اتحادی جو پریسائڈنگ آفیسر تھا وہ اپنا ہی رولز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قسم کا فیصلہ سنا دیا تھا, جس سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ کو کسی اور کو دیا گیا ہے اور اس شخص کو ایک بار پھر اس ہاؤس پہ, اس فورم پہ مسلط کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے جنرل الیکشنز میں ووٹر انٹینشنز کے مطابق, وہ ذرا سنانا چاہتا ہوں. The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2004 کا اور 2007 کا پریسیڈنس موجود ہے کہ جہاں ووٹر کا انٹینشن کلیئر ہے تو ان کا ووٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے ہو, ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ عام ووٹر کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے, تو آپ سینٹ آف پاکستان کے ساتھ سینیٹرز کو کیسے ڈس انفرینچائز کر سکتے ہو؟ اس کامیابی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے, یہ نہ صرف الیکشن ریزلٹس کے نتیجے ہیں, یہ اس پروسیس میں حصہ لے کے, ان کے خلاف لڑ کے یہ کامیابی ہم نے حاصل کیا ہے. اور ہم نے اس نظام کو نہ صرف ایکسپوز کیا ہے مگر پہلی بار ان کو ہروایا بھی ہے, شکست بھی دلوایا ہے. اور ہمارا امید ہے کہ ہمارا امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گا. آپ سب کا شکریہ. صاحب جس طریقے سے 7 ووٹ وہ دیکھے گئے, آپ سب نے جا کے اس کو وٹنس کیا, وہ بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ لگتے ہیں کہ ایک فائٹ پہ لگے گئے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں سے؟ میں نے اپنا جنرل الیکشن میں جب میں نے ووٹ دیا تو میں نے اپنے نام کے اوپر ایسے ہی ووٹ ڈالا تھا. جو جنرل الیکشنز میں آپ الیکشنز لڑتے ہو, جو بھی الیکشن کا حصہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ باکس کے اندر جہاں بھی لگائے, سمبل پہ لگائے, اس پہ بھی لگایا, مور لگا سکتے ہو. ہم نے یہ سارے جو ووٹس ہیں نہیں دیکھے ہیں, مگر فرام واٹ the presiding officer was stating, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is
antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. आपको भी पता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री लीडर्स है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इलेक्शन सेनेट के जो सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटरी है, उनसे ये पूछा भी सही, उनको कहा भी गया कि आप बॉक्स के अंदर जहां भी मोहर लगाए वो वैलिड है. वहां जो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं, जो सेनेट में पोडियम के सामने जो बड़ा पोस्टर छापा गया कि किस तरीके से उसमें उर्दू में लिखा गया है कि आपने कैसे वोट डालना है, उनके अपने रूल्स के मुताबिक ये जायज़ तरीका है. तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर कोई साजिश हुआ है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हुआ है, वो हुकूमत के इत्तेहादी की तरफ से हुआ है कि इलेक्शन जब वो हारे भी हैं तब भी वो अपने नुमाइंदा को जबरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं. आपसे बार सवाल किया गया था कि इस सेनेट इलेक्शन में कुछ कुव्वतें या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, ये आपसे बार सवाल किया गया था. आज ऐवान के अंदर जिस अंदाज से खुफिया कैमरे मिले, क्या आपको लगता है कि इसमें वो कुव्वतें न्यूट्रल थी? और दूसरा, अगर आपको अदालत से रिलीफ नहीं मिलता तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन भी है. जी, तो जहाँ तक ये कोर्ट की जो हमने फैसला कर लिया है वो हमारा कंसेंसस का फैसला है. जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस की बात है उस पर हमारा मुशावरत पीडीएम के साथ चल रहा है, लेकिन इतना क्लियर है, इतना एविडेंट है, इतना ओपन एंड शट केस है कि मेरा ख्याल में हमें कोर्ट जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस गलती को फिक्स करना चाहिए, सही करना चाहिए. जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है, मैंने मुसलसल कहा है कि न्यूट्रलिटी एक दिन में नहीं होता. हमारा तो जिद्दोजहद इस बात का है, हमारा तो कोशिश और स्ट्रगल इसका है कि हम चाहते हैं कि हर इदारा न्यूट्रल रहे, हर इदारा अपना ही डोमेन में काम करे. तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या आज पाकिस्तान में हर इदारा अपना दायरा में रह के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो. मगर हमारा जिद्दोजहद ये है, हमारा स्ट्रगल ये है कि हम सारे इदारे पाकिस्तान में उनको न्यूट्रल करवा दे, और जो मुंतखब इदारे हैं, जो अवाम के इदारे हैं, जो पार्लियामान है, वहाँ इस मुल्क के फैसले लिए जाएं. हम समझते हैं कि हमारा स्ट्रगल जारी रख के, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर स्ट्रगल करके, पार्लियामान में अपना स्पेस लेके आप ये स्पेस जमहूरी ताकतों के लिए छीनते हैं, आप लड़के हासिल करते हैं. कोई आपको no one will hand you over neutrality on a plate, we are fighting for it. और मैं समझता हूं कि ये हमारा जिद्दोजहद के नतीजा है, ये हमारा कोशिशों के नतीजा है कि कुछ तो हुआ, कुछ तो फर्क आया कि बाय इलेक्शंस में जिस तरीके से धांधली एक्सपोज किया गया और जिस तरीके से हुकूमत हर जगह इस मुल्क के कोने कोने से अवाम ने उनको इलेक्शंस में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो जिस तरीके से ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, ये तो ज़रूर बाय इलेक्शन से लेके आज तक एक न्यूट्रल तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है. मगर हमारा जिद्दोजहद ये है कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन, हर इदारा न्यूट्रलिटी से अपने दायरा में रह के काम करें. जिस तरह से अभी आपने बताया गिलानी साहब के वोट्स के हवाले से और 7 वोट्स का भी आपने तज़किरा किया, लेकिन इसके साथ जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो उसमें 54 वोट्स पड़ जाते हैं. क्या पीडीएम ने इस मामले पे मुशावरत नहीं की कि 54 वोट कैसे पड़ गए हैं, जबकि अक्सरियत जो थी ऐवान बाला में वो अपोजिशन जमातों की थी, पीडीएम की थी, तो ये वोट ज्यादा उनको कैसे पड़े? एक पर सवालिया निशान अगर आता तो फिर बात थी, लेकिन दूसरे के ऊपर भी सवालिया निशान आ रहा है. क्या आपने अपना हाउस इन ऑर्डर किया है? क्या आप इस हवाले से कोई इकदाम उठाएंगी पीडीएम की तमाम जमातें या नहीं? Sorry? Sure. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत डिटेल में इन्होंने
अपना मुशाहिदा जो टेलीविज़न के ज़रिए और MNA सेनेटर्स के ज़रिए जो मिला है वो आपके सामने पेश किया है। मैं खुद उम्मीदवार था और मैं खुद हाउस में था, और सुबह आप सब ने मुझसे पहला सवाल किया कि क्या आप जीतेंगे या हारेंगे। मैंने कहा 100% हम जीत जाएंगे, आपको याद होगा। और मुझे याद था कि मेरे पास 50 वोट्स कंफर्म थे और 98 वोट में से अगर 50 मेरे पास हैं तो बाकी आप समझ आएँ बाकी कितने बचेंगे। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो न्यूट्रल आदमी नहीं था, और ये इलेक्शन कमीशन के तहत नहीं थे, ये सेनेट के तहत थे। और सेनेट का इदारा जो है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया उस शख्स को जो उनकी पार्टी का था, और उन्होंने प्रिजाइड किया। और उस वक्त जब उन्होंने पहला जो ऑब्जेक्शन हुई तो उन्होंने वो वोट अलग करके रख लिया। तो हमने शोर किया कि पहले इसको डिटरमिन करें, कहते अभी कर लेते हैं। और फिर करते करते 8 वोट साइड पे कर दिए। जब 8 पूरे हो गए तो अब उनको हमने कहा रूलिंग दें कि ये जो 8 है इसका क्या करेंगे। उसने देखा, एक को देखने के बाद कहा स्टेट अवे रिजेक्टेड, क्योंकि इस पर डबल स्टैंपिंग है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। मगर जब बाकी देखा 7, तो फिर देखा उनका कितने हैं उनके पास, तो मेरे पास थे 42, तो 7 मिले तो 49 हो जाते थे, तो उनके थे 48। तो दैट वाज द अपसेट एंड द हिस्ट्री वाज इन द मेकिंग फॉर द PDM। उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि मेरी रूलिंग ये है कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो इसलिए वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था। और जो सेक्रेटरी था उसने शहरी रहमान साहबा को कहा कि ये जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शन, आपने पढ़ लिए हैं सारे इंस्ट्रक्शन, उसके मुताबिक उस खाने की किसी जगह पे भी बाहर नहीं, अंदर जो हो वैलिड है। और इसी ही तरीके के साथ जब शहरी रहमान ने उनको कहा कि अब आप बात करें, तो कहते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर कैन ओवर रूल मी। तो मगर इंस्ट्रक्शंस और टेलीविज़न में वो वही इंस्ट्रक्शंस थे जो चेयरमैन साहब ने आपको बताए हैं। तो इसलिए द इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन, और ये जो विक्ट्री है ये आर्जी है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो पहला स्टेप में ही गलत हो गया कि उनके सारे हिडन कैमरास जो थे वो एक्सपोज हो गए, और बाद में जो न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो था रिटर्निंग ऑफिसर, वो भी बायस नज़र आ गई। तो वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस, and we are consulting our legal experts to go to the courts. तो उसमें ये है कि जो चेयरमैन साहब ने कहा मैं उसको ही एंडोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज आई वाज सिटिंग इन द हाउस। सर ये बताइएगा कि एक सेकंड, डिप्टी चेयरमैन का जो हुआ वो उसका सिर्फ एक ही बात थी, people were demoralized. With the results of the chairman Senate का जब मुझे हराया गया तो people were demoralized, they became disinterested. That was the reason. अच्छा सर ये बताइएगा कि सियासी जमातों का अदालतों में जाने का जो तजर्बा है वो कोई अच्छा नहीं है। जब भी नतायज आते हैं वो किसी और की मर्जी के खिलाफ आते हैं। तो आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि ये जो फैसला आएगा ये आपके हक में आएगा, और PDM जो है वो अगर अदालतों से हारती है तो क्या वो फिर नो कॉन्फिडेंस? जहां तक लीगल पोजीशन है, कोई भी जो भी लीगल एक्सपर्ट होगा, जो भी लॉयर होगा, वो आपको साफ बता सकता है कि दिस इज एन ओपन एंड शट केस, दिस इज अ क्लियर केस। सो दिस इज व्हाई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अदालत सच के साथ देगा, अपनी ही रूलिंग्स के साथ देगा, अपना ही प्रेसिडेंट्स के साथ देगा, और इलेक्शन एक्ट के कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगा। और जब ऐसे होगा तो फैसला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक में होगा। जहां तक आप कह रहे हो कि कभी हम
مایوس ہوتے ہیں یا مایوسی ہوتا ہے جب الیکشنز میں یا عدالت سے یا کہیں سے انصاف نہیں ہوتا. ہم نے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی رہا